Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Now I am going to talk about the topic that is environmental degradation and its impact on human health. The particular topic that is related to the B.Ed optional paper, issues of conservation and environmental regeneration. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पर्यावरण क्षरण एवं उसके मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही मैं बता दूं कि यह B.Ed सेमेस्टर 4 के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर नंबर 13 जो कि इन्वायरमेंटल अंतर्गत इशूज ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन के अंतर्गत आता है। जब कहीं भी पर्यावरण क्षरण दैट मीन्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात होती है तो निश्चित ही यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का अत्यधिक दैट मीन्स पर्यावरण क्षरण का अत्यधिक मात्रा में मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि कैंसर या त्वचा संबंधी बीमारियां, अस्थमा, मलेरिया, वाटर बॉर्न डिजीज जो कि पानी के द्वारा होता है, बीमार दूषित पानी के पीने से होता है, पेचिस या डिसेंट्री वगैरह भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि या नेत्र संबंधी बीमारियां कहीं ना कहीं ये मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये पर्यावरण पूरी तरह से डिस्टर्ब यानी इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका एक्चुअल में कारण कौन है? तो मनुष्य की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ एंड इन द सेंस दैट मीन्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैं अब आपको इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, environmental degradation and its impact on human health of people. First, I will describe in English. Environmental degradation and its impact on health of people. According to Wikipedia, the definition is environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil, the destruction of ecosystem, habitat destruction, the extinction of wildlife and pollution. It is defined as any change or disturbance to the environment perceived to be deleterious or undesirable. The fact is, on the basis of above definition, it indicates that when natural habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. Environmental degradation is caused by natural phenomenon as well as by certain activities of human beings. Obviously, any person involved in such activity which is resulting in degradation of environment is responsible for the same. Now, primary cause, it is the most important and vital. Primary cause, there is a long list of such person or groups of persons and agencies. The primary cause of environmental degradation is human disturbance. Environmental changes are based on factors like urbanization, population and economic growth, increase in energy consumption and agriculture intensification. The degradation has adverse impact on humans, plants, animals and microorganisms. Now next fact is basic causes of the environmental problems we face today and environmental concerned, that it is the most important and vital. The main causes, basic cause of the environmental problems that means we face today. The main facts, biodiversity, as you know that it is the most important. Biodiversity is the most complex and vital features of our planet because variation leads to the development but it affects totally disturb the system. Water pollution is a huge concern for us and environment pollution, that is leads to our environment pollution. Climate change is another facts and it leads to the disturb of the environment. Population growth also leads to the disturb of environment. Wasteful and unsustainable resource use and poverty also
disturb the system of environment, and also disturb the process of resources. Failure in next point, failure to include harmful environmental cost of goods and services in their market prices. Next, insufficient knowledge of how nature works. That is the main fact or basic causes that is related to the environmental concern. Now, few examples of environmental degradation. Deforestation, soil erosion. Number one is deforestation, second soil erosion, third falling levels of groundwater, next number fourth depletion of the ozone layer and combustion from automobiles causing extreme air pollution, water pollution, throwing waste in river, that is number 6.7 use of chemical fertilizers and pesticides, and last point burning of coal and mineral oil. Now the last fact, environmental degradation and its impact on the health of people. Now its impact on the health of people. The impact of environmental risk factors on human health are extremely varied and complex in both severity and clinical significance. Number one, first point, the effects of environmental degradation on human health can range from death caused by cancer due to air pollution to psychological problems resulting from noise. Second point, globally 23% of all death and 26% of death amongst children under age 5 are due to preventable environmental factors. Next point, environmental degradation can lead to a scarcity of resources such as water and farmable. Next, extreme weather events such as severe flooding increase the spread of waterborne disease such as malaria and diarrhea. Next point, the alteration include global warming and climate changes which can increase the risk of climatic natural disaster and ozone layer depletion, which increases the risk of skin cancer, eye disease and crop failure. Next point, areas exposed to toxic air pollutants can cause respiratory problems like pneumonia and asthma. And the last point, millions of people are known to have died due to the indirect effects of air pollution. Now in Hindi. पर्यावरण क्षरण और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। पर्यावरण क्षरण, विकिपीडिया के अनुसार पर्यावरण क्षरण वायु, जल और मिट्टी जैसे संसाधनों की कमी के माध्यम से पर्यावरण की गिरावट है। पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, निवास का विनाश, वन जीवन की विलुप्ति और प्रदूषण, इसे पर्यावरण के लिए किसी भी परिवर्तन या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे निंदनीय या अवांछनीय माना जाता है। अब इस डिफिनेशन के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि या हम लोग कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं या प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते हैं, जाहिर है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण क्षरण हो रहा और वो व्यक्ति वे लोग जिम्मेवार हैं, वही इसके लिए जिम्मेवार भी होते हैं। पर्यावरण ये गिरावट प्राकृतिक घटना के साथ साथ मानव की कुछ गतिविधियों के कारण भी होती है। अब मैं थोड़ा सा पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण के बारे में थोड़ा स्पष्ट करूं। ऐसे व्यक्तियों और एजेंसियों के समूह की एक लंबी सूची है। पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण मानवीय अशांति है। पर्यावरणीय परिवर्तन, खासकर शहरीकरण, जनसंख्या और आर्थिक विकास, ऊर्जा की खपत में वृद्धि और कृषि गहनता जैसे कारकों पर आधारित है। पर्यावरणीय गिरावट का मनुष्यों, पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके कारण और पर्यावरण संबंधी चिंताएं जो कि कुछ इस प्रकार हैं।
नंबर 1, जैव विविधता। जैव विविधता हमारे ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता है, परंतु जिस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या आ रही हैं, ये विभिन्नताएं धीरे धीरे इसके संबंधित जो अलग अलग जो जीव नज़र आते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, और ये इसका भी कारण जो है पर्यावरणीय डिग्रेडेशन, दैट मीन्स पर्यावरण क्षरण ही है। पानी यानी जल प्रदूषण हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जल प्रदूषण पूरे मनुष्य की जो उत्पत्ति का जो आधार है वो पूरी तरह से मनुष्य को समाप्त कर सकता है। वनों की कटाई, हमें जीवित रहने के लिए पौधों और पेड़ों की आवश्यकता होती है। अगर वन प्रतिदिन कटते जाएंगे तो मनुष्य ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मनुष्य धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रदूषण यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं वो कहीं न कहीं मनुष्य के विनाश का कारक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी पर्यावरण क्षरण का एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है। जनसंख्या की वृद्धि के बारे में भी ये बातें स्पष्ट होती हैं कि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उसका मनुष्य प्रतिदिन उपयोग करता आ रहा है, जिससे कि पर्यावरण क्षरण की ओर अग्रसर हो रहा है। बेकार और अस्थिर संसाधन का उपयोग, यानी वैसे भी कुछ संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो उससे जो उपज पदार्थ या जो रिसोर्सेज जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में नज़र आते हैं या अवांछित पदार्थ होते हैं, वह सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। गरीबी भी बहुत बड़ा कारक है, जिससे कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें जीवन यापन कैसे करना है। सामान की जो तैयार होता है या किसी प्रकार की जो वस्तुएं मार्केट में के लिए या लोगों के उपयोग के लिए तैयार होती हैं, उसका उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे गलत तरीके से उपयोग कहीं ना कहीं पर्यावरण को डिस्टर्ब करती हैं। साथ ही एक और अंत में बात आती है कि हमें उपयोग प्रकृति में रहना कैसे है, प्रकृति का उपयोग कैसे करके रहना है, ये भी चीज़ हमें नहीं जानकारी होती है, जिससे कि पूरी तरह से प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण के कारक के रूप में हम सामने आ जाते हैं। अब लास्ट में पर्यावरण क्षरण के कुछ उदाहरण जो कि मैं सामने आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। वनों की कटाई के बारे में पहले मैं बता दिया, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, भूजल का गिरता स्तर, ओजोन परत का क्षरण और ऑटोमोबाइल के दहन से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, कचरे को नदी में फेंकना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, कोयला और खनिज तेल का जलना। ये चीज़ें एक चीज़ तो स्पष्ट करती हैं कि अपने दैनिक जीवन में रिसाइकलिंग, दैट मीन्स अगर हम इसे रीयूज करने की आदत डालें तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं का समाधान कर सकता है। और प्राकृतिक संसाधन हमारी संसाधनों को संरक्षित करने और आवासों को बचाने, प्रदूषण को कम करने या ऊर्जा की खपत की कटौती या ग्लोबल वार्मिंग की धीमा करने में मदद करने के लिए सभी प्रभावी तरीके हो सकते हैं। अब लास्ट में मैं बता दूं पर्यावरण गिरावट और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर सामान्य बात की जाए तो स्वास्थ्य पर पर्यावरण जोखिमों कारकों का प्रभाव गंभीरता और नैदानिक महत्व दोनों में अत्यंत विविध और जटिल है। नंबर 1, मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण क्षरण का प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण कैंसर से होने वाली मृत्यु से लेकर मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण हो सकती है। नंबर 2, वैश्विक स्तर पर सभी मौतों में 23% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 26% मौतें रोके जाने योग्य पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है। पर्यावरणीय गिरावटों में संसाधनों की कमी हो सकती है, जैसे पानी और कृषि योग्य मौसम की घटनाओं जैसे कि गंभीर बाढ़ जल जनित रोगों के प्रसार को बढ़ाते हैं, और ये 2 जैसे डिजीज हैं, मलेरिया और दस्त। नेक्स्ट है परिवर्तनों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, जो जलवायु प्राकृतिक आपदाओं को जोखिम बढ़ा सकते हैं। और ओजोन परत की कमी से त्वचा कैंसर, जो कि बहुत गंभीर बीमारी होती है, नेत्र रोग और फसल की विविधता का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे कि मनुष्य भोजन अगर नहीं रहेगा तो वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। जहरीले वायु प्रदूषकों के तो संपर्क में आने से वाले क्षेत्रों में निमोनिया और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो लास्ट में मैं एक बात कर सकता हूं कि वायु प्रदूषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण लाखों लोग भी मारे गए हैं। इस प्रकार से मैंने इसे स्पष्ट किया। अभी जस्ट मैंने जो विस्तार से चर्चा की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में और उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर जो पड़ता है, चाहे उनका रहन सहन हो या उनकी बीमारी जो तरह तरह की होती है या भोजन की समस्या के कारण होती है, ये चीज़ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण दैट मीन्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मनुष्य को प्रभावित करती है और साथ ही साथ वातावरण को भी यानी पर्यावरण को भी डिस्टर्ब करती है।
तो इस वीडियो को आप देखें, इसका नोट्स तैयार करें और इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। ये वीडियो हमारे जो YouTube चैनल है उस पर जो है वो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही ये अपलोड होगा आपको तुरंत उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।